Hello, everyone, and a very good evening. Welcome to the session 2 from the Certified Training Session Series arranged by Vardhaman Consultant. Would like to give a quick introduction about our speaker for the evening, Mr. Amit Vardhan, who is an MBA in Finance from Chanakya Institute of Management in 2019, completed his Bachelor's in Civil Engineering from D.Y. Patil College of Engineering in 2007. He has more than 11 years of rich industrial experience. Currently, he is being managing director as well at Vardhaman Consultant from around 5 years. Would like to hear from you on today's interesting topic: why home loans should not be closed early 2.0. Over to you, sir. Thank you very much, Mihir. So let's start with today's topic, home loan. Why home loans should not be closed early. Before I start with the session, how many of you feel that home loan should be closed early, or it is a load on your head and it needs to be removed as early as possible? So I'm waiting for your responses, friends. And very good evening. So, okay, paid off early, someone says. Mr. Satya Prakash, that is. Okay, nice to hear. How about the others? Anybody who would like to contribute? Why home loans should not be closed early? Okay, so by the way, is the session fine in English or you want in a different language, guys? No idea, Mr. Ethan. This is no idea whether to close early or not to close early. Okay. How about others? Mr. Subhadeep, Chaitanya. How about you guys? What do you think? Okay. So let's start. So just to start with, okay, you have not answered whether Hindi or English. हिंदी में चाहेंगे या इंग्लिश में चाहेंगे? Anybody have very specific? किसी को चाहिए कि मैं कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज करें? Just let me know whether you want me to put English or Hindi. Yes, Mr. Chiranjeev, we can get tax benefit in home loan, correct? But that is just one of the benefit. There are 6 more benefits which I will show you, and the quantum of tax benefit also will be shown here, and so that you guys understand what it is. Mr. Subhadeep said both. Mr. Hitendra said Hindi. तो ठीक है, हिंदी में भी हम आपको बता सकेंगे कि आपको क्या करना है आगे. So since most of are flexible, क्योंकि ज़्यादा लोग दोनों लैंग्वेज में दोनों भाषा में समझ सकते हैं. एक दो जने हैं जिसको सिर्फ हिंदी चाहिए. So we'll go for हिंदी. हम हिंदी में कोशिश करेंगे ये वेबिनार कंडक्ट करने की. So होम लोन क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है. आपको घर चाहिए, बैंक आपको उसके ऊपर लोन देता है. दैट इज नोन एज होम लोन. ओके. एंड होम लोन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस प्रकार के होम लोन मिलते हैं? होम लोन परचेस के लिए मिलता है, होम लोन इंप्रूवमेंट के लिए मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है, एक्सटेंशन के लिए मिलता है, जॉइंट होम लोन मिलता है. जॉइंट होम लोन मतलब इसमें आपके साथ कोई को बोरोर भी होता है. होम लोन बैलेंस ट्रांसफर होता है. अगर आपका लोन कहीं एक बैंक में चल रहा है तो आप दूसरे बैंक में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, इसलिए यूजुअली ट्रांसफर होता है. एंड टॉप अप होम लोन, जैसे मान लीजिए आपकी एक होम लोन की राशि चल रही है,
उसके ऊपर आपको एक एडिशनल लोन चाहिए रहेगा होता है, तो वो ट्रांसफर, तो उसको टॉप अप कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको मेरी भाषा समझ में आ रही है। अगर आपको कोई सवाल आता है तो बीच में आप कर सकते हैं, आप वो चैट में डालिएगा प्लीज। तो होम लोन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं? कैपिटल अप्रिसिएशन, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ग्रेटर क्रेडिट एलिजिबिलिटी, जो आपकी क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाती है, उससे आपको ज़्यादा क्रेडिट यानी कि लोन ज़्यादा मिलने की आशंका रहती है आगे जाकर, और इसी वजह से आपकी गुड क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती है। प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, आपको सारे प्रॉपर्टी के पेपर चेक करने आते हैं या नहीं आते, मगर होम लोन के जो बैंक्स जो होम लोन प्रोवाइड करती हैं उनको प्रॉपर्टी के सारे कागजात अच्छे से चेक करेंगे, इसलिए होम लोन लेना काफ़ी अच्छा रहता है। टैक्स बेनिफिट, इसके बारे में हम बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेक्शन 80C में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है, और सेक्शन 24 में 2 लाख का। सेक्शन 24 इज अंडर, वो आपके इनकम इंटरेस्ट कंपोनेंट को कंसिडर किया जाता है, और सेक्शन 80C में प्रिंसिपल कंपोनेंट को। एक अचीवमेंट होती है कि आपको एक घर ले लिया है आपने, और रेंटल एक्सपेंसेस से होम लोन में इन्वेस्टमेंट इज बहुत अच्छा रहता है, फायदेमंद होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको होम लोन के बारे में समझाया, एक बेनिफिट समझाया मैंने आपको। अब एक को बोरर और को ओनर का एक पॉसिबिलिटी होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने आपको जॉइंट लोन के बारे में बताया था। सो को बोरर कौन होता है? को बोरर वो होता है जो आपके साथ होम लोन पे करता है। जरूरी नहीं कि वो जो को बोरर है वो को ओनर भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके और आपके पिताजी के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप दोनों को ओनर हो गए, मगर आप और आपके पिताजी दोनों मिलके वो उसका ईएमआई भर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि दोनों ओनर हो सकता है प्रॉपर्टी पिताजी के नाम पे हो और आप साथ में उसमें को बोरर अटैच हो गए हो, तो दोनों को टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? को ओनर और को बोरोर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है भाई साहब? एवरीबॉडी आउट हियर, सबको ये चीज समझ में आ रही है? को ओनर एंड को बोरोर। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ को बोरोर? हायर टैक्स बेनिफिट, क्योंकि आपको दो जने टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं एक जने के अलावा। अगर आप एक बंदा है तो एक ही जना टैक्स बेनिफिट ले पाएगा, अगर आप दो बंदे हैं जो को बोरोर बनते हैं तो दोनों टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। इम्प्रूविंग एलिजिबिलिटी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रेडिट स्कोर वगैरह बढ़ता है, प्लस दो जने जाते हैं तो दोनों का क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। सेकेंडली क्या होता है कि आपका आपको सिर्फ समझो एक्स अमाउंट का लोन मिल रहा है, मगर जब दूसरा पर्सन आता है तो आपको एक्स प्लस एक्स वाई मिल जाता है, तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, आप बड़ा कर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर इन लोन रीपेमेंट, मतलब दो जने मिलके लोन को भर सकते हैं। लोअर रेट फॉर वुमेन, अगर कोई महिला है अगर आपके साथ को बोरोअर या को ओनर, तो आपको इंटरेस्ट रेट 5 to 10 बेसिस पॉइंट्स कम लगता है, 5 या 10 पैसे का कम लागत लगती है इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको ज्यादा लोन मिल सकता है शेयर इन ओनरशिप। तो आपको आप और अपने हस्बैंड वाइफ भी एज अ जॉइंट ओनरशिप के हिसाब से ले सकते हैं। व्हाट इज एलिजिबिलिटी? आदमी को अडल्ट होना होता है, 18 साल के ऊपर की आयु होनी चाहिए, स्टेडी इनकम फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार इनकम आई थी, जैसे रेगुलर बिजनेस इनकम या सैलरी इनकम होती है तो उसको काउंट किया जाता है। कौन कौन हो सकता है को ओनर, सॉरी कौन कौन हो सकता है को बोरोर? इट कैन बी ब्रदर ब्रदर, पेरेंट्स एंड सन, या पेरेंट एंड सन, एंड अनमैरिड डॉटर एंड पेरेंट्स।
मैरिड डॉटर और पेरेंट्स को नहीं लिया जा सकता है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, हम 20 साल का लोन उठाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हमें ये सर पर बोझा नहीं चाहिए, हम जितना जल्दी हो सके इस बोझे को उतारना चाहते हैं, तो हम उसको 9 या 10 साल में पूरा लोन भर देते हैं। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? क्या सभी आप मेरी बात से ताल्लुकात रखते हैं? ओके, वेरी गुड। तो आप अपना लोन जल्दी से भर देते, बराबर है। मगर आपको पता है कि आप अगर लोन जल्दी भरते हैं तो नुकसान आपका ज्यादा होता है। जल्दी लोन भरने में नुकसान आपका है। कितने लोग ये बात से सहमत है मेरे? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जल्दी लोन भरने से नुकसान होता है? ओके, तो ये तो मिस्टर चिरंजीव, आपने क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है सर। आपके इधर वो कुछ वापस टाइप कर सकते हैं? यस मिस्टर शिवदीप, नुकसान होता है। सो कौन कौन से नुकसान होते हैं वो हमने लिस्ट किए हैं आपके लिए। तो आपके कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं होम लोन जल्दी पेमेंट करने में, उसकी एक झलक आपको हम यहाँ दिखाते हैं। ये 7 तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप लूज कर लेते हैं अगर आप आपका लोन जरूरत से जल्दी भरते हैं। खाली होम लोन की बात कर रहा हूँ और किसी लोन की मैं बात नहीं कर रहा। तो एक एक करके इसको आराम से देखेंगे। सबसे पहला है टैक्स बेनिफिट, फिर ईएमआई जो डिफरेंस होता है उसका, प्रधानमंत्री आवास योजना का, इंश्योरेंस का, इंटरेस्ट पेमेंट जो रिड्यूस हो जाता है उसका, इंटरेस्ट रेट जो गिरता रहता है, और लोन और इन्फ्लेशन का एक कंपैरिजन किया है उसका भी एक लॉस है। तो क्या लॉस है मैं आपको आगे जाके सब एक एक विस्तार में बताएंगे आपको। तो सबका एक एक उदाहरण लेके मैं आपको आगे जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस मिस्टर चिरंजीव, जल्दी लोन पे करने में लॉस होता है। ये जो मैंने आपको 7 लॉसेस आपको बताए हैं, ये है वो 7 लॉसेस है। इसका मैं आगे पूरा अच्छे तरीके से विवरण करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये विवरण के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए कोई एक बंदा है जो 50 लाख का लोन लेता है 20 साल के लिए। पहली कंडीशन, वो रेगुलर पेमेंट करता है 20 साल के लिए। सेकंड कंडीशन कि वो प्री पेमेंट कर देता है 10 साल के लिए। और थर्ड कंडीशन, वो 20 साल का लोन को 30 साल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीनों कंडीशंस को हम कंपैरिजन करेंगे और उसके साथ ये भी कंपैरिजन करेंगे अगर साथ में को बोरोर हुआ तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो हम ये 4 चीजें कंपैरिजन करके आपको बताएंगे। इसके अंदर हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। ये 4 अजम्पशन लिए हैं हमने। टैक्स रेट आपका 30% है। म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स होते हैं वो हमने 12% के ऊपर रखा है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर 6%, और इंटरेस्ट ऑफ लोन इज एट 7%। 7% इंटरेस्ट रखा है होम लोन के ऊपर। अभी तो आजकल 7% से भी कम में मिल रहा है आपको होम लोन। सो गोइंग ऑन द एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, उदाहरण की तरफ। सो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 एंड सेक्शन 24। तो सबसे पहले जो टैक्स बेनिफिट होता है सिंगल बोरोवर के लिए, ये लोन टेन्योर फॉर द 10 ईयर्स। तो अगर आप 10 साल में पूरा लोन प्री पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो टैक्स बेनिफिट होता है टोटल आपका 9 लाख का होता है। ओके। और अगर आप जो पैसा जो आपका टैक्स में बच जाता है उसी पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टोटल आपका जो मूल लागत जो आपकी जमा होती है वो करीबन 19 लाख के आसपास होती है, ठीक है। ये जो 19 लाख की लागत अगर आप 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और 10 साल तक मतलब जो 20 साल का जो टेन्योर है उसके लिए हिसाब से रखेंगे तो उसकी वैल्यू 58 लाख हो जाएगी, ओके। और ये वैल्यू अगर आप 30 साल तक के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 करोड़ 82 लाख हो जाएगी।
क्या आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से? क्या आपने सोचा था इतना बड़ा वैल्यू हो सकता है खाली टैक्स सेविंग के लिए? ये खाली 10 साल के लिए है। तो सोचिए 30 साल के लिए कितना होगा। 30 साल के लिए हो जाता है ये 30 साल के पहले मैंने को बोरोर का निकाला है। अगर यही को बोरोर का होगा, क्योंकि 2 जने फायदा ले पाएंगे, ठीक है, तो ये टोटल आ जाता है 14 लाख का, ऑलमोस्ट 15 लाख है। और वही अगर जो पैसा आप टैक्स में सेव करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो जो पूरा टोटल सेविंग हो जाती है 31 लाख की हो जाती है, 31 लैक्स। बहुत अच्छी सेविंग होती है। आप जान के हैरान हो रहे होंगे बेशक। तो जो आप एक बंदा जो टैक्स बचाता है, अगर 2 बंदा सेम लोन के ऊपर प्री पेमेंट पेमेंट करेंगे, तो आपका डबल डबल से डबल तो नहीं है, पर काफी ज्यादा आपका एडिशनल टैक्स बचता है। तो आपका टोटल टैक्स सेविंग हो जाता है करीबन करीबन 15 लाख का। और जो अमाउंट, जो धनराशि होती है जो 10 साल में जमा हो जाती है, अगर आपको वही अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको करीबन 31 लाख मिलते हैं। अगर वही धनराशि को 31 लाख को और आप 10 साल के लिए चलाते हैं, तो वो करीबन करीबन 96 लैक्स की हो जाती है। और अगर 20 साल तक करेंगे तो वही वैल्यू जो होती है, धनराशि जो होती है, वो करीबन 3 करोड़ की हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर यही लोन जो हम रेगुलर टेन्योर में भरते हैं 20 साल के लिए, तो हमारा जो टैक्स सेविंग हो जाता है वो करीबन 18 लाख का हो जाता है। अगर ये जो 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 हमारी जो धनराशि जो बच जाती है, वो अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका वैल्यू हो जाता है करीबन 80 लाख। 80 लाख आप टैक्स में बचा रहे हैं सिर्फ। 18 लाख टैक्स में बचा रहे हैं, अगर उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो करीबन 80 लाख हो जाता है। यही अमाउंट अगर हम 30 साल तक रखते हैं तो इसका करीबन करीबन वैल्यू हो जाता है 2.5 करोड़। आप सोच भी सकते हो कि आपका लोन 50 लाख का है, आप उसमें सीधे सीधे तौर पे जो टैक्स बचा रहे हैं वो करीबन 18.5 लाख का है। और उसको अगर आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोबारा निवेश करते हैं, तो आपका करीबन करीबन जो आपका मूल्यांकन होता है वो करीबन 80 लाख का होता है। और वो मूल्यांकन अगर आप, और वो इन्वेस्टमेंट अगर आप 10 साल तक और नहीं निकालते हैं, तो उसका मूल्यांकन बढ़कर करीबन 2.5 करोड़ तक हो सकता है। तो नेक्स्ट जाते हैं को बोरो के ऊपर। अगर यही चीज को बोरो के साथ करते हैं, मतलब कि 2 लोग इसका रीपेमेंट करेंगे, तो आपका जो टैक्स में जो लागत बचती है वो होता है 26 लाख, 26.5 लाख। और वही अगर पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो करीबन करीबन वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ की। तो ये काफी बड़ा वैल्यू है। इसी तौर से अगर 20 साल के बाद अगर और 10 साल की वैल्यू रखते हैं तो ये करीबन 3 करोड़ 43 लाख की वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट है 30 इयर्स के लिए अगर हम टैक्स सेविंग करते हैं, अगर लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा 50 लाख का लोन है, 26 लाख तो हम डायरेक्टली टैक्स में बचा रहे हैं। 26 lakhs इज सेव डायरेक्टली इन टैक्सेस, सीधे सीधे। और वही पैसा अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं तो करीबन करीबन हम 2.25 करोड़ रुपए हमारे म्यूचुअल फंड के थ्रू आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मूल्यांकन होता है। वापस से मैं दोहराऊंगा, हमारा लोन सिर्फ 50 लाख का है यहाँ पे, इस जो उदाहरण में हमने जो वैल्यू रखी है लोन की। अगर को बोरो में जाते हैं तो खाली टैक्स में जो बचत होती है 35 लाख की होती है। सर फिर से दोहराता हूँ, 50 लाख का लोन है, 35 लाख सिर्फ टैक्स में बच रहे हैं। ओके, और उसका मूल्यांकन अगर आप म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्टमेंट करके करेंगे तो करीबन करीबन 3.25 करोड़ का हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा भी था आपको इतना ज्यादा वैल्यूएशन मिल सकता है? तो ये आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। नेक्स्ट, कैन ईएमआई डिफरेंस अमाउंट कैन, जो ईएमआई का जो डिफरेंस होता है वो हम म्यूचुअल फंड में डाल के उसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
आपको इसका उदाहरण देता हूं। ये 3 अलग अलग साल हैं, 3 अलग अलग टेन्योर है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए और 30 साल के लिए। 10 साल के लिए मेरा जो ईएमआई आता है 58,000 का आता है, 20 साल के लिए 38,000 का आता है करीबन, और 30 साल के लिए 33,000 का आता है। तो ये सबका जो ईएमआई डिफरेंस है यहाँ पे नीचे दिया गया है, 19,000, 24,000 और 5,000। तो जब ये डिफरेंस को हम एसआईपी करते हैं, तो जब 10 साल की होती है, तो 10 साल 20 साल का जो डिफरेंस होता है, तो 10 साल वाले में जब हम खाली पहले 10 साल कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो जो नेक्स्ट 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होता है 58,000 की एसआईपी होती है 10 साल के लिए, तो उसका मूल्यांकन होता है करीबन 1,34,00,000। जो 20 साल के लिए जो बचता है, 20 साल में जो हमारा डिफरेंस होता है 19,000 का, अगर हम वो 20 साल के लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए पूरा 19,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो करीबन करीबन 1,92,000, 1,92,92,00,000 का वैल्यूएशन आता है। तो इसमें नेट नेट डिफरेंस 59 लाख या 60 लाख का लगभग हो जाता है। इसी तरह से 10 साल और 30 साल के बीच में अगर हम एसआईपी करते हैं, मतलब जो पैसा हम पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये डिफरेंस आता है करीबन करीबन 3 करोड़ का, और 10 से 20 साल के जो डिफरेंस आता है ये करीबन 1 करोड़ का डिफरेंस आता है। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है भाई लोग, भाई साहब? क्या आप इस उदाहरण से तर्क रख पा रहे हैं? आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं? थैंक यू मिस्टर जितेंद्र। तो इसमें नेक्स्ट जाते हैं हम प्रधानमंत्री आवास योजना में। ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2015 में। इसको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम भी कहते हैं, फॉर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ये स्कीम के अंदर एक फीमेल को ओनर या ओनर होना जरूरी है, और बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडर किए जाते हैं। इसका थोड़ा और विस्तार में आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। सो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इसमें ग्रामीण के अंदर जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए होता है, और अर्बन में मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप 1 और 2 स्लैब में डिवाइड किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहती है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एनुअल जो सैलरी होती है अप टू 3 लाख होती है, एलआईजी के लिए 3 to 6, एमआईजी के लिए 3 to 12 और एमआईजी 2 के लिए 12 to 18 लाख की होती है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये सब्सिडी का जो ब्यौरा दिया गया है, वो इस अंदर जो सब्सिडी कैसे मिलती है, कहाँ तक मिलती है, उसका विवरण किया गया है इस स्लाइड के अंदर। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, उदाहरण दे रहा हूं, जिससे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। अगर आप एक मिडिल इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं जिसकी एनुअल इनकम करीबन 10 लाख है और आपका लोन 50 लाख का लिया है, टेन्योर आपका 20 लाख का है और कारपेट एरिया करीबन 100 स्क्वायर मीटर का है, तो हम 10 साल के टेन्योर के साथ कंपेयर करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर कोब और यहाँ पे जो रहेगा, जो बेनिफिट मिलेगा 10 साल में आपको 1,44,000 का ही बेनिफिट मिलेगा, मगर सेम चीज अगर आप 20 साल के लिए करते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलता है 2,35,000 के हिसाब से मिलता है। अगर यही, तो ये आपको फिर डायरेक्टली डिस्काउंट होके मिलता है। तो यही अगर आप इसको री इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल के लिए तो आपको टोटल मिलेगा 2,80,000, करीबन 2,80,000 के आसपास मिलेगा। और अगर जो 10 साल के लिए, अगर इसी को हमने खींच के अगर 20 साल तक कर दिया तो 8,70,000 के आसपास मिलता है। अगर हम इसको 30 साल तक रखते हैं तो 27 लाख के आसपास चला जाएगा ये मूल्यांकन। 20 साल वाली कैटेगरी में अगर हम जो 2,35,000 की जो हमें सब्सिडी मिल रही है उसको अगर हम बचाएंगे तो करीबन करीबन 9.25 लाख की री इन्वेस्टमेंट करके मिल सकती हैं। अगर हम इसको फिर से 30 साल तक रखते हैं तो इसका पूरा मूल्यांकन करीबन 30 लाख हो जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना 30 साल के टेन्योर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका 30 साल का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं दर्शा रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। बेनिफिट 4, अगर आप अपना रीपेमेंट जल्दी करते हैं तो आपका इंश्योरेंस बंद हो जाता है। सीधी सी बात मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपने आपका समझो आपने आपका एक लोन 20 साल की अवधि के लिए लिया है, मगर आप उसको 10 साल में पूरा कर देते हैं और 11वें साल में आपको कुछ हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो लोन था वो आप ऑलरेडी भर चुके हो। समझ में आ रही है सब बात? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? हर कोई समझ पा रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपका जो होम लोन होता है वो अगर जो 20 साल का आपने लिया था, अगर आप 10 साल में कंप्लीट कर देते हो और 11वें साल में अगर आपको कुछ होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी हिसाब से सपोर्ट नहीं करती है। और ये कितना बेनिफिट आपका नुकसान होता है वो उसके उदाहरण के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे जो टेबल कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने 20 साल का लोन लिया है और आपने 10 साल में कंप्लीट कर दिया, 11वें साल हो जाता है आपको कुछ, तो ये जो 30 या 31 लाख रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे सकती थी वो नहीं देगी, क्योंकि आप अपना होम लोन पूरा भर चुके हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप मान लीजिए अगर आपने आपका लोन 30 साल के लिए लिया है और अगर आपने समझो 10 साल में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तो और 11वें साल में अगर आपको कुछ हो जाता है, तो जो 41 या 42 लाख रुपए हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को कायदे से भरने चाहिए, तो वो नहीं भरेंगी, क्योंकि आपने होम लोन पूरा भर दिया है। क्योंकि ये होम लोन के साथ लिंक होता है आपका इंश्योरेंस। और आजकल होम लोन के टाइम हर कोई बैंक अपने आप को सेव करने के लिए आपको पहले इंश्योरेंस देता है, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो अगर आपको कोई तकलीफ हो गई हो तो। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। एक कंपैरिजन को बोरर का भी किया गया है, क्योंकि को बोरर में इसमें अगर 50-50 अगर परसेंट को बोरर का भी रहेगा, तो ये इंश्योरेंस पर पर्सन उसके हिसाब से आपका आधा हो जाएगा एक आदमी के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूसेस व्हाइल प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीजेस। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको आपका होम लोन जल्दी नहीं भरना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए थे 10% इंटरेस्ट पे, 10% इंटरेस्ट रेट पे, 1 साल के लिए। मैं क्या करता हूं कि मैं आपको 10 रुपए जो इंटरेस्ट कंपोनेंट के होते हैं वो पहले महीने में ही दे देता हूं। तो अब जो मेरा जो अमाउंट बचता है वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बचता है, जो 100 रुपए है। अगर वो मैं आपको अगले महीने दे दूं तो वो आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी उसका ब्याज तो चुका चुका हूं। तो अगर मैं उसको साल के अंत में दूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं उस पैसे का उपयोग मेरे हिसाब से कर सकता हूं। आ रही है बात समझ में? देवी और सज्जनों, आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? थैंक यू वीना मैम। सो इसी तरह से जब आप होम लोन लेते हैं, अगर आपका समझ लीजिए कि 20 साल का लोन है, ठीक है, तो आप पहले 10 साल में सिर्फ 33% प्रिंसिपल ही चुकाते हैं। बाकी जो है वो होता है 67%, वो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो उसके बाद अगर आप अपना पेमेंट जल्दी करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, ये जो ऑरेंज पोर्शन है
ये आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है, और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है। तो आप ये ऑरेंज पोर्शन पहले ही भर देते हैं, ओके। और ये जो आपका जो रेड लाइन दिख रही है ये आपका बैलेंस है जो धीरे धीरे कम होता है, ये प्रिंसिपल का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप वो लोन जल्दी भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आप ब्याज ऑलरेडी भर चुके हो, जिसका आप ब्याज पहले से भर चुके हो, क्या आपको वो लोन जल्दी चुकाना चाहिए जिसका आप ब्याज ऑलरेडी भर चुके हो? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप उस लोन का आपको जल्दी क्लोज करना चाहिए जिसका आप ब्याज ऑलरेडी चुका चुके हो? धन्यवाद मीर, धन्यवाद हितेंद्र भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपना लोन जल्दी नहीं भरना है। जो जल्दी भरने से बैंक को फायदा होएगा, वो पैसा आपका है, आपको ज्यादा यूटिलाइज करके फिर आपको बैंक को देना है। जल्दी रिपेमेंट करने में कोई भलाई नहीं, इसमें बैंक का फायदा होगा, आपका फायदा नहीं है। इसी तरह से मैंने 10 साल का भी कैलकुलेशन बताया है, और इसी तर्ज पर मैंने आपको 30 साल का भी कैलकुलेशन बताया। अगर आप 30 साल का लोन लेते हैं तो पहले 10 साल में जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो सिर्फ 14-15% ही पे किया जाता है, बाकी का अगले 20 सालों में किया जाता है। तो आपका मोटा मोटा सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट ही लिया जाता है उस वक्त। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट फॉलिंग बेनिफिट्स। कितने लोग ये समझते हैं कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं? कितने को लगता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होगा, और कितने को लगता है आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? कम होगा, करेक्ट। तो आप सबको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, चलो अच्छी बात है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो आप पेमेंट जल्दी क्यों कर रहे हैं? पेमेंट जल्दी करेंगे तो आप हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो, लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? चलो आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि पहले 10 साल में जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7%, यानी कि 7% का है। आने वाले 10, आगे जाके जब 10 साल के बाद शायद 5% हो जाए, और उसके बाद और 10 साल बाद आपका और कम होकर 4% हो जाए। उसके साथ हम कंपेयर करते हैं 7% के इंटरेस्ट रेट के साथ जो एक कांस्टेंट रखा है हमने। तो 20 साल के केस में पहले 10 साल आपका इंटरेस्ट रेट खाली 7% रहेगा, उसके बाद 5% कर दिया, तो हर साल जो ईएमआई का डिफरेंस है 40,000 के आसपास है, ठीक है। ये ईएमआई का जो डिफरेंस जो 40,000 का है, तो यहाँ पे वो डिफरेंस पर मंथ 3,353 रुपए का होता है। तो अगर हम इस पैसे को 10 साल के लिए एसआईपी के रूप में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो बनेगा पैसा वो करीबन है 8 लाख रुपए का। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जब आगे जाके इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो ईएमआई का जो आपका डिफरेंस होगा उसको आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो एसआईपी का मूल्यांकन 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको 30 साल का विवरण दिया है यहाँ पर। तो 30 साल में आपका जो एसआईपी का मूल्यांकन अलग अलग रेट से कम हो जाएगा, आपका ईएमआई जो है अलग अलग मूल्यांकन से कम हो जाएगा। जो डिफरेंस आता है फर्स्ट आने वाले 10 सालों बाद वो करीबन 60,000 के आसपास का है, और उसके बाद और आने वाले और 10 सालों बाद 75,000 के आसपास का है। तो उतना जब आप ईएमआई में डाल एसआईपी में करते हैं तो उसका टोटल मूल्यांकन 53 लाख का हो जाता है, जो काफी बड़ी बात है। अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारा जो
लोन था वो सिर्फ 50 लाख का है, उसके सामने हमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, इतने फायदे हो रहे हैं कि उसका हिसाब नहीं है। तो हमारा जो लोन जल्दी क्लोज करने का जो ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए। क्या आपको ये सब बात समझ में आ रही है? सेवेंथ बेनिफिट जो होता है होम लोन इन्फ्लेशन का, हम सब जन मानते हैं कि हमारा दो चीजें होती है, एक तो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है और एक इन्फ्लेशन होता है जो महंगाई की दर होती है, यूजुअली 6-7% के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो आज की तारीख में जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है और महंगाई की दर ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट के आसपास है। तो नेट नेट हमें कुछ ज़्यादा नहीं भरना पड़ रहा है, समझो खाली 1% भरना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में आपको कितना भरना पड़ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही मैंने आपको दिया गया है उदाहरण आपको, कि अगर 10 साल के हिसाब से कंपेयर करें तो आपको पर डे खाली 50 रुपये एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि आप उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट निकाल देंगे जो आपको सीधे तौर पे मिल रहा है, प्लस टोटल आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो खाली महंगाई के हिसाब से जो दर होती है 66 लाख, 67 लाख की होती है और 69 लाख के आसपास आती है जो 7% के हिसाब से। तो एडिशनल आपका सिर्फ 3% ही जा रहा है, 3 लाख ही जा रहा है, 3.25 लाख जा रहा है। तो 3.25 लाख को अगर आप 10 साल के अंदर डिवाइड करेंगे तो पर डे यू आर ओनली पेइंग 50 रुपीज एक्स्ट्रा, नॉट मच। जो आपको लगता है बहुत बड़ा बोझा है वो एक्चुअल में सिर्फ 50 रुपये पर डे का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। सिमिलर तौर पे अगर मैं 20 साल का कैलकुलेशन दिखाऊं तो ये सिर्फ 65 रुपये प्रतिदिन पड़ता है आपको। एक और चीज़ मैं आप बताना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है ये तो ज़्यादा हो गया 50 रुपये से, तो एक चीज़ बताता हूँ, आज जो 50 रुपये की वैल्यू है कल वो 50 रुपये की वैल्यू नहीं हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसी तरह से आज जो 65 रुपये की वैल्यू है 20 साल बाद वो 65 रुपये की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम 30 साल में कंपेयर करेंगे तो इसका मूल्यांकन आता है करीबन 109 रुपये एडिशनल पेमेंट। अगेन मैं फिर से समझाता हूँ, आज जो 100 या 110 रुपये की वैल्यू है वो आगे जाके 30 सालों बाद वो बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। आपको मैं एक बहुत सामान्य सा उदाहरण देता हूँ। नमक जो 30 साल पहले करीबन 2 रुपये किलो के हिसाब से बिकता था, आज 20 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो करीबन करीबन एक शून्य आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 10 गुना बढ़ गया है। तो आगे जाके 10-20 सालों बाद 100 या 50 रुपये की वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको सारे 7 बेनिफिट्स बता दिए थे। इसके अंदर लर्निंग्स क्या है वो मैं आपको एक विस्तार में एक संक्षेप में बताना चाहूँगा कि टोटल आपको कितना मुनाफा होता है अगर आप 20 साल का लोन 10 साल में कंप्लीट करते हैं, तो आपको कितना नुकसान होता है। तो करीबन आपको 2,60,00,000 का नुकसान होता है अगर आप अपना लोन जल्दी प्रीपे करते हैं। यानी कि आपको उतना फायदा भी हो सकता है अगर आप अपना लेट पेमेंट करेंगे या सही समय पर पेमेंट करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? आप अपना लोन अगर जल्दी कंप्लीट करते हैं तो आपको 2,60,00,000 का नुकसान होता है। इसी तर्ज पर अगर आप 10 और 20 का कंपैरिजन करेंगे को बोरोवर में, क्योंकि उसमें टैक्स सेविंग ज़्यादा मिलती है, तो टोटल नुकसान जो होता है करीबन 5 करोड़ के आसपास का होता है। अगर हम कंपाउंडिंग को जो 10 साल की जो कंपाउंडिंग को 20 साल भी ले जाते हैं तो भी 3 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमारा होम लोन सिर्फ 50 लाख का था। 50 लाख के सामने आप 5 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं, 10 गुना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं आप अपना, अगर आप पेमेंट जल्दी करते हैं तो। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक का फायदा होता है, आपका नहीं। हाँ, आपको खाली एक सांत्वना मिलती है कि हाँ हमारे सर से बोझा उतर गया, हमें कोई लोन नहीं भरना है। पर एक चीज याद रखिए, अगर आप वही पैसा अगर धनराशि कहीं और म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो वो धनराशि आपकी ही होगी। बस इतना ही है कि आपको आपका बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है। ये 10 साल 20 साल के लिए हो गया।
10 और 30 साल के लिए करेंगे तो ये जो नुकसान हो जाता है करीबन 11 करोड़ का हो जाता है। आप मानेंगे मेरी बात, ये एक्चुअल फिगर्स है। आपका मैं फिर से बताता हूँ, लोन से 50 लाख का है नुकसान, बहुत बड़ा है उसके सामने। सिमिलरली अगर वो पैसा आप री इन्वेस्टमेंट करके तो फिर भी 3 करोड़ के ऊपर का नुकसान होता है। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कैसे किया पूरा मैंने आपको विस्तार में बताया था आपको। उसके बाद को बोरो में सेम चीजें करते हैं, तो फिर भी आपको यहाँ पे देखिए 11 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे आपको करीबन 4 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ, गार्ड बांध लीजिए कि आपको आपका होम लोन जल्दी रीपे नहीं करना है। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, इसको ये सब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी सारा हमने दिमाग लगाया है, तब जाके ये प्रेजेंटेशन बनी है, तब जाके ये कैलकुलेशन उभर के आए हैं। ये ऐसे एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। यही 20 और 30 साल के कैलकुलेशन में करेंगे तो इसमें करीबन 3 करोड़ का नुकसान होता है, 3 करोड़ 32 लाख का, और इसमें करीबन 54 लाख का नुकसान होता है। ये को बोरोर के अंदर करेंगे तो ये 4 करोड़ का नुकसान होता है, और ये 54 लाख का सिमिलर पे जाता है। तो इस तरह से आपके नुकसान होते हैं। और जो बाकी के जो नोशनल लॉसेस है, जो एक्चुअल मोनेटाइज नहीं कर सकते हम, इंटरेस्ट पेमेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको जल्दी से रीपेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंश्योरेंस बेनिफिट जो चला जाता है, और वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब कोई कमाने वाला निकल जाता है तो वो नुकसान बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस बेनिफिट हमेशा पूरा लेना चाहिए। और लोन को अगर आप इन्फ्लेशन से कंपेयर करेंगे तो नेट नेट ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये मैंने बहुत नॉमिनल 6% काउंट किया है। अगर आप वैसे देखने जाएंगे तो इन्फ्लेशन या महंगाई की दर एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं आपको उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। आप मान लीजिए आपके बच्चे की स्कूल होती है, तो स्कूल की फीस कितने प्रतिशत से बढ़ती है हर साल? जहां तक मेरा अंदाजा है हर साल करीबन 10% के हिसाब से हर साल बढ़ती रहती है, हर साल वृद्धि होती है। तो जो मैंने महंगाई की दर 6% बताई है वो काफी कम है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? और ये हम करते हैं यूजुअली, हम 5% से ईएमआई बढ़ा देते हैं, 10% से बढ़ा देते हैं, और 12 साल, 9 साल, 10 साल में हम कंप्लीट करते हैं 20 साल का लोन। प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज 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 ये मत कीजिए, ओके। एंड मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें एडवाइजर क्यों होना चाहिए आपके साथ, उसका उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तब तक आप अपने सवाल रख सकते हैं, वो वीडियो खत्म होने के बाद हम उस सवालों के जवाब देंगे। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। The day I was getting married to an army officer, I definitely knew that it's not going to be a conventional life for me. I got married at an early age of 19, so the only attraction for me to get married at this age was because I was getting married to an army officer. 2 years after our marriage, we were blessed with a baby boy. Together, we made a very happy little family, the most awesome family, I'll say that. So after 4 years of our marriage, he got posted to Kashmir. I never realized that life can change in just fraction of a second. One day, my husband, he got martyred while fighting terrorists in Kashmir. When this happened, my son was just 2 years old. That was like most devastating news for me.
The biggest challenge was for me that my son was so small. I was not prepared to take care of him alone. He used to advise me that no, it is very important that you be independent. You take charge of your life, lead your life the way you want to. Don't get under the pressure of what people are telling you to do. I went on to join the army. So in less than 3 months of time, I was sitting in front of Service Selection Board for my interview to give the exam for joining the forces. When I received his gallantry award with our then President Shri APJ Kalam, I walked in my uniform, but it was like him walking. I was just a medium. I just wanted to follow kind of his advice that okay, you should never leave any option, leave any opportunity to live life, to know things in life, because this is only one life. So I went on to participate in the beauty pageant, and there's so much we can do in this one life, but we just try not to do. We are scared of things. In this life, I've lived many roles, from being army officer's wife to myself becoming an army officer. With all the experiences which I've had in my life, what all things I've achieved in my life, I can say with a lot of conviction that life में advice ज़रूरी है. So this was a small video, एक छोटा सा वीडियो था, why advice is important. Excuse me. I hope if you have any questions, आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. जितेंद्र भाई, वीना बेन, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. मैं जवाब देने के लिए कोशिश करता हूं कि आपके कोई डाउट हो तो मैं क्लियर कर सकूं आपके डाउट्स. और ये हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप कभी भी इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें. आपको किसी भी प्रकार की अगर एडवाइस चाहिए तो हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे. So there's a question, can we have a link of this video? Avinash, I will try to upload the link, a video on YouTube, and we'll try to pass on that link. Meanwhile, you can subscribe to the videos and other Facebook or Instagram or LinkedIn pages for updates on these kind of events. So it can help you guys a lot more. आप चैट के अंदर आपको सारे लिंक्स दिए गए हैं, आप कृपया करके उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके. और कोई सवाल है किसी का तो हम जवाब देने की पूरी चेष्टा करेंगे. जितेंद्र जी, आपने पूरा सेशन अटेंड किया है, बहुत अच्छा लगा. अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज बताइए. So there's a question by Miss Veena. Yes. Considering the current market scenario of job insecurity, we feel like clearing off a loan quickly. Is it wrong? Yes, this is absolutely wrong. I will tell you why. Would you like the answer in Hindi or English? अच्छा, मैं वापस से हिंदी में दोहराता हूँ अगर किसी को हिंदी में जवाब चाहिए तो. अगर मार्केट के सिनारियो के हिसाब से जॉब की इनसिक्योरिटी हमेशा लगी रहती है तो हमेशा जल्दी लोन पे कर लेना चाहिए. ऐसा सवाल है, क्या ये ऐसा करना सही है या गलत है? मेरे हिसाब से ये 100% गलत है. आपके लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है कि आपको
रीपेमेंट ही करना ईएमआई का। रीपेमेंट के साथ आपको आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए करना है, आपको आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, और जो दूसरे फाइनेंशियल गोल हैं उनकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर आप एक ही जगह ध्यान देंगे तो बाकी सब मिस हो जाएगा। तो आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि मान लीजिए आपके पास, समझो अगर आपका ईएमआई समझो जैसे हमने इस उदाहरण में देखा कि 38,000 का है और आपकी कैपेसिटी है 50,000 का ईएमआई चुकाने की। अगर ये 50,000 अगर आप कहीं म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड कहीं पर भी लगाएंगे, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपका अलग से कॉर्पस जनरेट करेगा। ठीक है, तो कभी अगर कुछ आपदा आ गई, अगर आपका जॉब नहीं रहा, तो उस पैसे से आप उस लोन को चुका सकते हैं, मतलब आप ईएमआई भर सकते हैं। फिर जॉब तो आपका 6-8 महीने में लग ही जाएगा, बराबर ना। ऐसा तो नहीं है कि आज आपका जॉब चला गया तो वापस कभी लगेगा नहीं जॉब। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए बीना जी। अगर आपका जॉब कहीं किसी वजह से चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने साल भर बाद नहीं लगेगा, पर तब तक के लिए आपके पास इतनी धनराशि जमा हो जाएगी जिससे आप ये सारे लोन चुका सकेंगे, ईएमआई हो जाएगी, और 10 साल में तो आपका काफी अच्छा खासा जमा हो जाएगा। अगर आप 10 साल में लोन चुकाएंगे तो प्लस आपका टैक्स बेनिफिट, जो दूसरे बेनिफिट्स जो हमने बताया वो सब चला जाएगा। यस मैम, फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा पक्का ही होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में कच्चा कुछ नहीं चलेगा। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमेशा सॉर्ट आउट हो जाते हैं फिर। ये आपने एकदम ठीक कहा, फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा पक्का होना चाहिए, उतना पक्का होना चाहिए। मैडम कच्चा तो कुछ भी नहीं चलता, कच्चा तो खाना भी पेट दर्द देता है, बराबर ना। हाँ, किसी के पास और कोई सवाल है तो हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। हेलो। यस मिस्टर परेश। अभी के कंडीशन में हम्म। इन्वेस्टमेंट करना है तो इंश्योरेंस छोड़ के कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? सर म्यूचुअल फंड? ये मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पहली बात मुझे आपकी रिक्वायरमेंट का पता नहीं है। मुझे आपके प्रोफाइल का नहीं पता है, आपकी एज क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपको कितनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जब तक मुझे ये सारे पैरामीटर्स नहीं पता चलेंगे, ये सवाल का जवाब मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है। फिर उसके लिए आप कब मिल सकते हैं, मतलब कैसे अरेंज करेंगे? सर आप मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं सेशन खत्म होने के बाद। हम इस पे लंबी अवधि में आराम से वार्तालाप करके जो भी आपके सवाल है उसका विवरण कर सकते हैं सर। ये जो नंबर लिखा है ना, सेम नंबर ना, व्हाट्सएप एंड कॉल बोथ? यस सर, परफेक्ट। 1369। और चलो ठीक है, ओके 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 परेश भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीबडी एल्स हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? किसी के पास और कोई सवाल है तो हम जवाब देने के लिए उत्साहित हैं। Mihir, I don't think any more questions are coming up. I think we can wrap for the day. Sure, sir. So I would like to thank Amit sir for taking out his time for this session. It was definitely an eye-opening session for all of us. I would like our audience to write a feedback in the chat box. You can reach out to us on the links provided in the chat box. If you want to go through this session once again, the recording will be available on our YouTube portal too. Please write your feedback. Please, if you can write here. आप अपना फीडबैक यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम जान सकेंगे कि हमें क्या नया करना है। अगर कोई आप और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम कुछ वेबिनार करें तो आप वो भी लिख सकते हैं। Thank you very much, Miss Veena.
अगर आप ऑडियंस में से कोई चाहता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम कोई सेशन या वेबिनार करें, प्लीज आप उसके ऊपर भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर कुछ जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, आई थिंक दैट इज, थैंक यू हितेंद्र भाई। एनीबॉडी एल्स? Okay, I think we are done. Thank you, Mir. Bye, everybody. Thank you.